Hello everyone, welcome to Monica Khurana's Academy. Now this is part 2 subject verb agreement. Guys, अभी तक आपने बेसिक एलिमेंट तो सीख लिया होगा. आज हम थोड़ा सा ऐसा लेकर आ रहे हैं those things where students or people do lots of errors, lots of mistakes. Okay, so कौन सी हैं वो mistakes? Let's understand that without wasting any time. Exactly, if I take this first example, the apples in this basket are delicious. Okay, so आप में से कई लोगों को ये सेंटेंस सही लगेगा, कई लोगों को ये गलत लगेगा, लेकिन ये सेंटेंस सही है. दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली राइट. कई many of the people would take it as like basket. They would take it as subject of the sentence. But if you pay attention to this sentence, here subject is apples, not basket. Look carefully, break it. The apples in this basket, it is the basically what? It is position of the apples in the basket. Basket is just there as a holding object. But basket is not delicious. Apples are delicious. So our helping verb will concord with this subject, not this. So apples is plural. That is why we here use plural helping verb. That is our. Take next example. The strong bond of affection between the two cousins was obvious. Now some of students would take it as wrong sentence, but it is absolutely right. It actually depends on your knowledge of understanding subject and predicate. Here subject is not two cousins. Obvious. What is obvious? What is obvious? Strong bond is obvious. Now whatever bond, this is bond of affection. That is why this bond is singular and our helping verb is again singular. Okay, so you have to take care of subject very carefully to write proper sentence. Okay, so this is the strong bond of affection between the two cousins was obvious. It is not two cousins obvious, it is bond of affection. That is obvious. Take another example. The joys one experiences in one's childhood are beyond description. Now some would take this as subject. This is not subject. What is beyond description? Childhood? No. Joys. Experiences? No. Joys. The joys one experiences in one's childhood, those joys are beyond description. So here helping verb will concord with joys, not childhood or experiences. Okay, so now there are some rules, guys, to understand this subject and helping verb. Let's take example of there. Students do lots of error here. We should use is or are, was or were, singular or plural helping verb with there. So it depends on the context of there. Okay, so there is no proof of his involvement in this case. What is helping subject here? Proof नहीं है कोई, जबकि और भी यहाँ case, in this case this is preposition, this is determiner, this is object. His involvement, यहाँ पर his आपका क्या काम कर रहा है? pronoun का involvement जो है आपका basic word को indicate कर रहा है. No proof. So basically we are talking about proof and that is singular. That is why we used is. But if I talk about there are major flaws in your argument, आपके आर्ग्यूमेंट में बहुत सारे फ्लॉज हैं, तो यहाँ जो हमारा हेल्पिंग सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है देयर में, दैट इज प्लूरल फ्लॉज. ओके, दैट इज व्हाई we wrote here are. Okay, so some of the rules you have to memorize. Just note it down, although we have given you that picture also, but understand first
whenever two or more nouns join by and, then what would you use? If that and subject, okay, when that refers to different persons or different things, then we use plural helping verb. Like Ram and Sham were going to the park. Ram is separate, Sham is separate. So obviously we will use helping verb, plural helping verb, are. Okay? But when they refer to the same person or thing, like bread and butter is the only thing for which everybody works, then that if they refer as one singular thing, like I read some examples to you. If like this is simple living and high thinking dash the key to happiness. Now check it out. सोचो जल्दी से, इसको बोलते हैं सेल्फ एनालिसिस. मैं आंसर दूंगी आपको, इज आना चाहिए या आर आना चाहिए. सिंपल लिविंग इन हाई थिंकिंग डैश द की टू हैप्पीनेस. सो सिंपल लिविंग इन हाई थिंकिंग हमारे एक आइडियोलॉजी को शो कर रहे हैं, एंड दैट इज इंडिकेटिंग सिंपल लिविंग इन हाई थिंकिंग किस आइडियोलॉजी को शो करेंगे कि हमें सिंपल लिविंग स्टाइल होना चाहिए और हमारी थिंकिंग बहुत हाई होना चाहिए. तो ये हम एक ऑब्जेक्ट नहीं इसको मान सकते. टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वंस बिहेवियर. सो इट विल बी रिगार्डेड एज सिंपल थिंकिंग एंड हाई लिविंग आर द की टू हैप्पीनेस. इफ आई टॉक अबाउट ही एंड आई डैश गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द स्टेज. उसको और मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है. अब आपने वॉज या वर में से चूज करना है, क्या करोगे? He and I dash given the responsibility of managing the stage. So obviously दो different aspect हैं यहाँ पर, तो वर चलेगा. Okay? अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ the director and the producer of the movie dash present there, was और वर. अगर मैं यहाँ पे वर लगाती हूँ तो मतलब होगा डायरेक्टर अलग पर्सन है और प्रोड्यूसर अलग पर्सन है. उसको हम कैसे लिखेंगे? द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर. और अगर मैं ये लिखती हूँ कि द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, तो मैं एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज़ के बारे में बात कर रही हूँ. तो इफ़ आई राइट लाइक दिस द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द मूवी डैश प्रेजेंट देयर, तो यहाँ पर क्या आएगा? वॉज प्रेजेंट देयर. और अगर मैं लिखती हूँ द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर ऑफ द मूवी, राइट, यहाँ पे हमने द डायरेक्टर एक अलग पर्सन को बोला, द लगा दिया आर्टिकल एक अलग पर्सन को डिफाइन करने के लिए, तो ये दो अलग लोग हो गए. तो ये क्या हो गया हमारा? वर. सिमिलरली राइस एंड करी इज डैश फेवरेट डिश. सॉरी, मैंने यहाँ आंसर बोल दिया आपको, डैश हिज फेवरेट डिश. तो ऑब्वियसली इज राइस एंड करी इज वन आइटम, दैट इज राइस एंड करी. ओके, सो आर इन ग्लोरी ऑफ माई कंट्री, honor and glory of my country dash uppermost in my mind. तो यहाँ पर मैं सिंगुलर यूज़ करूँगी. क्यों? क्योंकि मैं अपनी कंट्री के एक ही पर्सपेक्टिव की बात कर रही हूँ. अब कईयों को लगेगा मैम आप सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग को तो आपने दो दो चीज़ें बताया, यहाँ ऑनर एंड ग्लोरी को आप एक चीज़ बता रहे हो, क्योंकि ऑनर एंड ग्लोरी एक ही चीज़ के दो नाम हैं या फिर एक ही चीज़ के दो एस्पेक्ट हैं, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये सेम मीनिंग को कन्वे करते हैं एम्फेसाइज डालने के लिए, इसीलिए यहाँ हमने सिंगुलर यूज़ किया. ठीक है? मेकिंग अ प्रॉमिस एंड नॉट ऑनरिंग इट डैश अगेंस्ट माई प्रिंसिपल. अब यहाँ इज लिखोगे या आर लिखोगे? मेकिंग अ प्रॉमिस एंड नॉट ऑनरिंग इट. वैसे कई लोग इसको दो अलग अलग ले सकते हैं, लेकिन आप आगे देखोगे मैंने एंड नॉट यहाँ पर अलग से रूल लिखा हुआ है. जहाँ भी एंड नॉट आता है तो वो एक ही आइडिया का एक्सटेंशन शो करता है. तो प्रॉमिस करना और उसको पूरा ना करना, तो ये एक ही एक्शन हो गया, तो इसलिए हम इसके साथ सिंगुलर लेके चलेंगे. ओके, सो मेकिंग अ प्रॉमिस एंड नॉट ऑनरिंग इट इज अगेंस्ट माई प्रिंसिपल्स. तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि जब डिफरेंट पर्सन्स को ये इंडिकेट करता है तो आप इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स लगाते हैं, या डिफरेंट आइडिया को इंडिकेट करता है. जब ये सेम आइडिया को या सेम पर्सन को इंडिकेट करता है तो आप, जैसे कि मैंने डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर बोला,
तो वहाँ पर आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। आपको अपनी नॉलेज चेक करने के लिए गूगल फॉर्म ज़रूर मिलेगा इस वीडियो के साथ। आप अपना टेस्ट दो, चेक करो। I want to make sure one thing, please, whenever you attempt e-test, you have to make sure of choices and punctuation. You have to take care of that. आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ कैपिटल वर्ड आएगा, कहाँ नहीं। फिर भी मैं आपकी हेल्प के लिए एक चीज़ बता सकती हूँ कि आप जब आंसर्स देखेंगे उसमें, और अगर आप ये देखते हैं कि आपने कुछ वर्ड अलग लिख दिया, तो आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं फिर भी उस मैनर में। कम मार्क्स से घबराने की ज़रूरत नहीं है। एंड डू शेयर योर मार्क्स विद अस गाइज, दैट एक्चुअली हेल्प्स अस टू, दैट एक्चुअली मोटिवेट्स अस। ओके, डू शेयर योर मार्क्स, डू शेयर योर फीडबैक। सो if I talk about next thing, as well as beside and not, like, with, together with, in addition to, whenever we use these conjunctions anywhere with two subjects, okay, then we always use helping verb that identifies or agree, okay, that agrees with the first subject. Let's see some example. If I talk about this, Mr. Das as well as his friends dash escaped unhurt. Now Mr. Das as well as his friends. Mr. Das is singular, his friends plural. So हमने क्या कहा कि जब भी as well as या beside या and not या like with, together with, in addition to कुछ भी यूज़ हो रहा हो, तो हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब कॉन्कॉर्ड करेगी। So here Mr. Das as well as his friends dash escaped unhurt, has या have। बहुत सारे बच्चे हैव लिख देंगे क्योंकि उनको पास में फ्रेंड्स दिख रहा है और वो दो एंड से जुड़ा हुआ है या एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, तो वो सोचेंगे दो आइडियाज़ डिफरेंट हैं। वो सिर्फ यही दिमाग में रख लेते हैं, जबकि इसका रूल है कि अगर ऐसी किसी कंजंक्शन से आपका कोई भी दो सब्जेक्ट्स ज्वाइन होते हैं तो आप हमेशा फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के साथ आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे। यहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, मिस्टर दास, तो वहाँ पर ही शी वाला वो लगेगा आपका सिंगुलर वाला। सो मिस्टर दास इज सिंगुलर, तो आप हैज़ यूज़ करेंगे। सिमिलरली यू एज वेल एज आई, ठीक है। अगर ये ऐसा होता कि ही एज वेल एज आई डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लॉसेस, इस एमआर में से क्या लगेगा? तो अगर ये है यू एज वेल एज आई, तो आई के साथ एम लगा सकते हो आप। कई लोग अगर वो सिर्फ एक इसी लॉ को याद रखते हैं, लेकिन आपको पता है एज वेल एज में हमारी फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ वर्ब जाएगी। तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, यू, तो आपका आंसर क्या आया, यू एज वेल एज आई आर रिस्पॉन्सिबल। अगर ये होता ही एज वेल एज आई, तो यहाँ पर इज हो जाता। गॉट माई पॉइंट? ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, मेमोराइज करो इस चीज़ को। और अगर ये है द कैप्टन विद अदर मेंबर्स ऑफ द टीम डैश गिवन अ हार्टी वेलकम, द कैप्टन विद अदर मेंबर्स, यहाँ पर क्या आ रहा है, विद, द कैप्टन विद अदर मेंबर्स। अगेन ये किससे हेल्प, किससे आपका कॉन्कॉर्ड करेगा, फर्स्ट सब्जेक्ट से। कैप्टन क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है, सिंगुलर है, तो आप यहाँ पर क्या लोगे, वॉज गिवन, राइट। इसी तरीके से अगर यहाँ पर इफ आई एम लुकिंग फॉर अनदर एग्जाम्पल, ओके, सो इफ आई टेक अनदर एग्जाम्पल, then you can see not only your qualifications, okay, this is not only, let's leave this. Yes, I as well as you dash responsible for our losses. अब यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, आई, एज वेल एज से ज्वाइन हो रहा है, तो आप इसमें एम लगाओगे, ना कि यू आर लगाओगे। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट रूल, दैट इज नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर, नॉर, आइदर, और। अगर ऐसा कुछ आता है जो बाद में यूज़ होते हैं, जैसे ये फर्स्ट सब्जेक्ट में आएगा, बीच में कुछ फ्रेजेस आए, फिर बट ऑल्सो आएगा, फिर फ्रेजेस आए, तो ऐसे सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो इसमें आपने हमेशा याद रखना है कि जो हमारी वर्ब है वो लेटर सब्जेक्ट के साथ एग्री करती है। मतलब कि
और के साथ जो सब्जेक्ट लगा होगा, नॉर के साथ जो सब्जेक्ट लगा होगा, बट ऑल्सो के साथ जो सब्जेक्ट लगा होगा। अगर यहाँ पर हम एग्जाम्पल लें, नॉट ओनली योर क्वालिफिकेशंस बट योर एटीट्यूड ऑल्सो, तो बट ऑल्सो में क्या लगा हुआ है, एटीट्यूड। नॉट ओनली के साथ क्या लगा हुआ है, क्वालिफिकेशंस। नॉट ओनली के साथ जो सब्जेक्ट है क्वालिफिकेशंस, योर क्वालिफिकेशंस, ये प्लूरल है। एंड बट योर एटीट्यूड, ये क्या है हमारा, दिस इज सिंगुलर। बट योर एटीट्यूड ऑल्सो डैश इम्पॉर्टेंट फॉर गेटिंग अ गुड जॉब। सो यहाँ इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा। यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, क्वालिफिकेशंस के साथ हम नहीं जाएंगे। हमें पता है कि ये हमारा रूल है, इसमें बाद वाले के साथ जाना है, तो हम नॉर के साथ देखेंगे क्या लगा है, योर एटीट्यूड। दैट एटीट्यूड सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सो यहाँ पर हम इज यूज़ करेंगे। समझ आ गया बेटा। नेक्स्ट जो है, अगर मैं यहाँ पर यूज़ करूँ, नाइदर गौरव नॉर यू डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। अब गौरव को अगर देखा जाए तो सिंगुलर है, इज एम आर में से यूज़ करना हो तो जिनको नहीं पता है ये रूल वो इज़ यूज़ कर लेंगे, यही मानते हुए कि सब में फर्स्ट वर्ब के साथ ही आप जाओगे या फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ आप जाओगे। लेकिन आपको पता है लेटर वर्ब के साथ जाना है। लेटर क्या है, नॉर के साथ इन्होंने क्या लगाया है, यू, और वो क्या है, प्लूरल, तो आपके साथ क्या आ जाएगा, आर। समझ आ गया बेटा। ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं और ये कुछ चीज़ें हैं। आज सिर्फ इतने से ही रूल्स में लेकर आई हूँ आपके सामने। अभी भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वी आर नॉट डन विद दिस सब्जेक्ट particularly. There are other examples or rules also, so that we will show in next slide, because 10 to 12 minutes are enough to learn something, so that is enough. आप अभी इसको समझो, इसको मेमोराइज करो और इसकी प्रैक्टिस करो, और साथ ही साथ अपने आप को एनालाइज करो टेस्ट से, और फिर बताओ हमको कि और आप क्या नेक्स्ट देखना चाहते हो। So bye for now, and do practice till our next video. Thank you so much for watching it.